سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے حضرت اقدس یادگار اسلاف، ہمارے بڑوں کی نشانی، استاذ العلماء، فخر العلماء جناب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، باوجود علالت کے، ضعف کے، ہمارے درخواست پر الحمدللہ حضرت تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کو شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالی حضرت کو مکمل صحت عطا فرمائے، تا حیات اللہ تعالی تر و تازگی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت ہی بیان بھی فرمائیں گے اور پھر ختم قرآن کے موقع پر حضرت ہی انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی مجلس میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سنت طریقہ ہے کہ جب ان کا قرآن ختم ہوتا تھا تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کر تکمیل قرآن پر جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہی عمل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ جب ان کا قرآن ختم ہوتا تو اپنے سب گھر والوں کو جمع کر کر وہ اجتماعی جو ہے دعا کرتے، اور اختتام قرآن پر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالی خصوصیت سے اس دعا کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے مجلس میں حاضری کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت طرح کی مخلوقات جو ہے وہ پیدا کی ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی طرح کی مخلوقات اس کائنات میں جو ہے وہ پیدا کی ہیں، لیکن ان ساری مخلوقات میں ایک مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس مخلوق کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بنایا ہے، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ عارضی ہیں، انہیں ایک دن جو ہے وہ ختم ہونا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی مخلوق اللہ نے صرف انسان کو جو ہے وہ بنایا ہے، جو ایک دفعہ زندہ ہو گیا ہے، اب اسے ہمیشہ رہنا ہے اور اسے جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ جتنا بنا ہوا نظام ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارا ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن اس زمین کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جس آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں ایک دن اس آسمان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، آج جو ہم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں ایک دن ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا، سمندر ہے جس نے زمین کو گھیرا ہوا ہے، لیکن ایک دن آئے گا اس سمندر کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کتنے حیوانات اللہ نے اس زمین پر پیدا کیے ہیں، ایک دن ان پر ایسا آئے گا کہ سارے حیوانات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ کائنات کی ایک مخلوق ہے، لیکن اللہ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ایک دن آئے گا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج بھی ختم ہو جائے گا، چاند بھی ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو جو کچھ بھی اس کائنات میں مخلوقات کے نام سے بنا ہے یہ سارا عارضی ہے، اسے ایک دن ختم ہونا ہے، لیکن اس انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ ماں کے پیٹ کی زندگی ہم نے گزاری، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ زندگی ہماری پوری ہوئی۔ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ، اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر لے آئے۔ ثُمَّ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دے دی ہے۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ زندگی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجل، جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا تو اس زندگی کو ہم چھوڑ دیں گے۔
اور دوسری زندگی کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے اور وہ قبر کی زندگی ہوگی، وہ برزخ کی زندگی ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو فوراً جو ہے وہ برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ کتنی زندگی ہے برزخ کی اللہ کے علم میں ہے، لیکن برزخ میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ قبریں پھٹیں گی، ہم قبروں سے جو ہے وہ ہم قبروں سے نکلیں گے، ہمیں جو ہے نہ دنیا نے ختم کیا نہ قبر نے ختم کیا، اور پھر وہاں سے نکل کر فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، سارے اللہ کے سامنے قیامت کے دن قیامت کے میدان میں ہم کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یجمع اللہ الاولین والآخرین، سارے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان جو دنیا کے اندر آنے والا ہے، یہ سارے کے سارے میدان حشر میں جمع ہوں گے، لیکن میدان حشر بھی ہمیں ختم نہیں کرے گا، پھر اگلی ہماری زندگی شروع ہو جائے گی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پل صراط کی زندگی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ آگے فیصلے ہونے ہیں، جنت میں کس نے جانا ہے، جہنم میں کس نے جانا ہے، فیصلے اللہ کریں گے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ مالک کا اعلان ہوگا، یا اہل الجنہ خالدین فیہا ابدا، جنت والو ہمیشہ رہنا ہے، کبھی تم نے ختم نہیں ہونا ہے۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ، اے دوزخ والو خالدین فیہا ابدا، تم نے ہمیشہ رہنا ہے، کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ تو ہم ایسی مخلوق ہے، ہمارے سامنے صرف موت سے پہلے کا مسئلہ نہیں ہے، موت سے پہلے کا مسئلہ ہے، موت کا مسئلہ ہے، قبر کا مسئلہ ہے، حشر کا مسئلہ ہے، حساب کتاب کا مسئلہ ہے، پل صراط کا مسئلہ ہے، اور جنت و جہنم کے فیصلے کا مسئلہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ سارے مسائل صرف ہمارے ساتھ ہیں، اور جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کے لیے یہ مسائل نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں ایسے راستے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے قانون کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے ضابطے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے علم کی ضرورت ہے جو علم ہماری دنیا کے بننے کا سبب بنے، ہماری موت کے بننے کا سبب بنے، ہماری قبر کے بننے کا سبب بنے، ہمارے حشر کے بننے کا سبب بنے، ہمارے پل صراط کے بننے کا سبب بنے، ہماری جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ ہمیں ایسے طریقے کی ضرورت ہے، ایسے علم کی ضرورت ہے جس علم سے ہماری دنیا کی ضروریات پوری ہو، جس علم سے موت سے لے کر جنت میں جانے تک جتنی گھاٹیاں آنے والی ہیں، جتنی منزلیں آنے والی ہیں، ان ساری منزلوں میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہمیں ایسے علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم بغیر علم کے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم اس حال میں دنیا کے اندر آئے ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کے بننے کے اسباب کیا ہیں، موت کے بننے کے اسباب کیا ہیں، قبر کے بننے کے اسباب کیا ہیں، حشر کے بننے کے اسباب کیا ہیں، پل صراط کے بننے کے اسباب کیا ہیں، جنت میں جانے کے اسباب کیا ہیں، جہنم سے بچنے کے اسباب کیا ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہارے سامنے یہ علم نہیں ہے، تمہارے پاس یہ علم نہیں ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، تم تو غافل ہو کر اس دنیا کے اندر آئے ہو۔ تو میرے بھائیو، ہم سارے کے سارے ایک ایسے علم کے محتاج ہیں جو علم ہماری دنیا کو بنا دے، جو علم ہماری آخرت کو بنا دے، جو ہماری آخرت کو بنا دے۔ اور یہ علم صرف ایک ذات کے پاس ہے، اس ذات کا نام جو ہے وہ اللہ ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے جس کے پاس جو ہے ہماری دنیا کی ساری حاجات کے علم ہے۔ ہماری موت کے وقت کیا حاجت ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، قبر میں کیا حاجت ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، حشر میں، پل صراط میں کیا حاجات ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ کے علم نے ہمارے سارے حالات کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہمارے سارے مسائل کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہماری ساری حاجات کا جو ہے وہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو ساری امت ایسے علم کی محتاج ہے جو علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اگر یہ علم نہ ہوتا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون،
رسول जिनके पास अल्लाह का इल्म नहीं आया है वो भी जिंदगी दुनिया के अंदर गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी सारी ख्वाहिशें, उनकी सारी हाजतें, उनकी सारी तमन्नाएं, उनकी आरज़ुएं, उनकी उम्मीदें सारी मौत से पहले की जिंदगी के साथ लगी हुई है। उनका इल्म भी मौत से पहले की जिंदगी का है। उनकी सारी चीजें जो लग रही हैं वो मौत से पहले की जिंदगी पर खर्च हो रही है। इन नादानों को पता नहीं है मौत के वक्त क्या तुम्हारे साथ होने वाला है, कब्र में क्या होने वाला है, हशर में क्या होने वाला है, पुरसरात में क्या होने वाला है। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, इन सारी चीजों का इल्म उनके पास नहीं है। इसलिए सारे की सारी इंसानियत उस इल्म इलाही की मोहताज है जो इल्म हमारी दुनिया को बनाएगा, जो इल्म हमारी आखिरत को बनाएगा। अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया, एहसान किया। अल्लाह ने इस उम्मत के लिए अपने इल्म से जो इल्म इस उम्मत की दुनिया और आखिरत को बनाने के लिए उतारा, उस इल्म का नाम कुरान मजीद है, उस इल्म का नाम कुरान मुकद्दस है, उस इल्म का नाम किताबुल्लाह है, उस इल्म का नाम जो है वो कलामुल्लाह है। वो इल्म अल्लाह ने दिया है जो अल्लाह की जात से निकला है। जिस तरह अल्लाह की जात हर आयब से पाक है, उसका इल्म हर नुक्स से पाक है, हर कमी से पाक है। जिस तरह अल्लाह की सारी सिफात लामहदूद है, उसका इल्म भी लामहदूद है, उसका कलाम भी लामहदूद है। जिस तरह अल्लाह की सारी सिफात हमेशा रहने वाली है, उसका सिफत कलाम भी हमेशा रहने वाला है, हमेशा बाकी रहने वाला है। अल्लाह ने इस उम्मत को दुनिया और आखिरत के बनाने के लिए कुरान जैसी मुकद्दस जो है वो किताब, कुरान जैसी मुकद्दस किताब इस उम्मत को अल्लाह ताला ने दी है। हमने इस कुरान को नहीं पहचाना है कि ये कुरान कैसी आजमत वाली किताब है। अल्लाह ने तौरात दी, इंजील दी, ज़बूर दी, वो सिर्फ अल्लाह की किताबें थी, अल्लाह के कलाम नहीं थे। ये वाहिद इस दुनिया की उम्मत है जिसे किताब भी मिली है और जिसे अल्लाह का कलाम भी जो है वो मिला है। अल्लाह ने तौरात को नहीं पढ़ा, इंजील को नहीं पढ़ा, ज़बूर को नहीं पढ़ा। अल्लाह ने जिब्राइल को लौह महफूज से तख्तियों पर लिखो ताकि नबियों के हाथों में पहुंचा दो। लेकिन जब इस उम्मत के इल्म का नंबर आया है, अल्लाह ने जिब्राइल को लौह महफूज की तरफ नहीं भेजा है, कहा जिब्राइल मेरे पास आओ। जिब्राइल हाजिर हुए हैं। अल्लाह ने एक एक आयत पढ़ कर जो है जिब्राइल को सुनाई है और कहा जाओ बेआईनी इसी तरह मेरे महबूब को पढ़कर जाकर ये कलाम सुनाओ। और जिब्राइल ने एक एक आयत पढ़कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है वो पहुंचाई है। अल्लाह ने हमें ऐसी अजमत वाली किताब अता की है। लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल ला रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह, ये तो पहाड़ों पर नहीं उतर गई वरना वो रेज़ा हो जाते। ये तो अल्लाह ने इस उम्मत के लिए आसान कर दिया। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ने आसान कर दिया है। और उम्मत का बच्चा भी हाफिज कुरान है, जवान भी हाफिज कुरान है, बूढ़ा भी हाफिज कुरान है। अरे इस उम्मत के नबी ने कुरान पाक के जो है वो हाफिज है, इस उम्मत की औरतें कुरान पाक की जो है वो हाफिज है। तौरात का कोई नबी के अलावा नहीं, इंजील का नबी के अलावा कोई हाफिज नहीं, ज़बूर का कोई नहीं। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ याद थी या बाद में जो है वो उज़ैर ने याद की। जब उज़ैर ने जो है वो तौरात को जो है वो याद किया, यहूद ने कहा वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कि ये उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। अरे भाई अल्लाह के बेटे क्यों हैं? कैसे अल्लाह की किताब ज़बानी याद है इसलिए अल्लाह के बेटे हैं। क्या मामला है इस उम्मत का? इस उम्मत में हर जमाने में लाखों की तादाद में अल्लाह की किताब के जो है वो हाफिज मौजूद हों, अल्लाह के कलाम के हाफिज मौजूद हों। इसलिए कुरान बड़ी मुकद्दस किताब है। ये कुरान जो है बड़ी आज़मत वाली किताब है। हम अल्लाह की इस किताब को पहचान नहीं सके। अल्लाह ताला ने इस कुरान की पहली सूरत जो है जिसे उम्मुल किताब के नाम से जो है वो याद किया जाता है। 114 सूरतें अल्लाह ने कुरान में रखी हैं। 114 सूरतों में से एक सूरत जो है वो उम्मुल किताब है। कहा जाता है, यानी जो है बाज औकात का माना माँ के आता है। वह उम्मुहु सिद्दीका, यहाँ माँ के माना में है। ठिकाने के माना में आता है। वह उम्मुहु हाविया, और हुम और जो है असल के माना में आता है। हुन्ना उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहात। कैसी किताब अल्लाह ताला ने दी है? अल्लाह ने इस कुरान में 6 मजमून जो है वो बयान किए हैं। अल्लाह ने इस कुरान में 6 मजमून बयान किए हैं।
तौहीद को बयान किया है, रिसालत को बयान किया है, अहकामात को बयान किया है, क़यामत को बयान किया है, मानने वालों का अंजाम क्या हुआ उसे बयान किया है, न मानने वालों का अंजाम क्या हुआ उसे बयान किया है। 113 सूरतों का खुलासा अल्लाह ने इस उम्मत की किताब में एक छोटी सी 7 आयत की सूरत में अल्लाह ने पूरे कुरान का खुलासा उम्मुल किताब के नाम से जो है इस उम्मत को जो है वो दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमान अर्रहीम, ये अल्लाह की तौहीद आ गई। मालिक यौमिद्दीन, ये जो है वो क़यामत का जिक्र आया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह के अहकामात का बयान आ गया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, नबियों का रिसालत का जिक्र आ गया। मानने वालों का अंजाम क्या है उसका जिक्र आ गया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, न मानने वालों का अंजाम क्या हुआ उसका जिक्र आया। अल्लाह ने पूरे कुरान का खुलासा इस उम्मत की आसानी के लिए एक छोटी सी सूरत में अल्लाह ने जो है इस कुरान पाक के खुलासे को जिक्र कर दिया, ताकि हर मुसलमान के जहन में हो मेरे कुरान में अल्लाह ने कौन सी मज़ामीन को बयान किया है, मेरे कुरान ने जो है मुझे किस मज़ामीन को बताया है। ये इस किताब का एक एक हरफ हमें अपनी मंजिल का बता रहा है। इस कुरान का एक एक हरफ हमें अपनी मंजिल का बता रहा है। अरे मेरे पढ़ने वालों, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हारा ठिकाना क्या है, तुमने कहाँ पहुंचना है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ था जामतुल हसनैन, वो बोर्ड तो मदरसा नहीं है, वो बोर्ड तो बता रहा है कि जामतुल हसनैन जो है उसका रास्ता जो है वो ये है। इस किताब का एक एक लफ्ज हमें बता रहा है कि तुमने कहाँ पहुंचना है, तुम्हारी पहुंचने की मंजिल क्या है। इस कुरान का एक एक लफ्ज जो है वो बता रहा है। लेकिन क्या करें, उम्मत ने इस कुरान को जो है वो नहीं, उम्मत ने इस कुरान को नहीं लिया, उम्मत ने इस कुरान को नहीं समझा। हमने ये समझ लिया पढ़ेंगे सवाब मिल जाएगा, नेकियां मिल जाएंगी। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने हादुल अरवा इला बिलादिल अफरा एक किताब लिखी है, उस किताब में इस हदीस को जो है वो नकल किया है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं जन्नत में एक मजलिस होगी, जन्नत में एक मजलिस होगी, उस मजलिस में सिर्फ उलमा शरीक होंगे, उस मजलिस में सिर्फ उलमा शरीक होंगे। और फिर अल्लाह उन उलमा पर इस कुरान पाक के उलूम की और इसके मारिफ की अल्लाह बारिश करेंगे। और ये जन्नत की सबसे लजीज नेमत अल्लाह की होगी कि अल्लाह अपने कुरान, अपने किताब का इल्म उलमा को जन्नत में बिठाकर इस कुरान की माहियत को, इसकी हकीकत को उलमा के सामने जो है वो खोलेंगे और उलमा को बताएंगे। ये मजलिस जन्नत में हुआ करेगी। जिस तरह जन्नत हमेशा के लिए है, इस तरह ये मजलिस भी हमेशा के लिए है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस किताब के उलूम की क्या जो है वो हकीकत होगी कि अल्लाह हमेशा उलमा पर इसके रुमूज को खोलते रहेंगे, हमेशा उलमा पर इसके मारिफ को खोलते रहेंगे और कुरान के मारिफ खत्म नहीं होंगे। और उलमा के लिए उस जन्नत की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि अल्लाह उलमा को इस कलाम की हकीकत जो है वो नसीब फरमाएंगे। एक मजलिस में नहीं, जन्नत हमेशा के लिए है, मजलिसें हमेशा होती रहेंगी और ये कुरान के उलूम जो है वो हमेशा उलमा पर जो है वो खुलते रहेंगे। कैसा इल्म होगा जिसका आखिरी किनारा नहीं हो, कैसा इल्म होगा जिसे अल्लाह खोलकर अपने जो है वो जन्नत उलमा के दिल में जो है वो डाल रहे हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी ने 30 जिल्दों में कुरान पाक की जो है वो तफसीर लिख दी। अगर करोड़ों जिल्दों में भी कुरान पाक की कोई तफसीर लिख दे फिर भी हकीकत, फिर भी कलाम की हकीकत तक जो है ये नहीं पहुंच। इसी किताब जो है इस उम्मत को जो है वो अता की है। एक मिसाल देता हूं, हमने इस कुरान को समझा नहीं, कुरान कह रहा है, एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। अल्लाह ने कहा मालिक यौमिद्दीन, भी क़यामत आनी है और उस क़यामत के मालिक कौन होंगे? अल्लाह होंगे। वो क़यामत का दिन क्या है? फैसले का दिन है। हाज़ा यौमुल फ़स्ल, ये फैसले का दिन है। और फैसला कौन करेगा? वजा रब्बुक, खुद तुम्हारा रब आएगा। व शरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, और जो है मैदान हशर की जमीन अल्लाह के नूर से जो है
अल्लाह की तजल्लियात से मुनव्वर हो जाएगी, अल्लाह खुद फैसला करेंगे। अल्लाह ने लफ्ज यहाँ इस्तेमाल ये होना चाहिए था काजी यौमुद्दीन के, यौमुद्दीन के फैसल अल्लाह की जात होगी, लेकिन लफ्ज अल्लाह ने क्या इस्तेमाल किया है, काजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ने मालिक का लफ्ज इस्तेमाल किया है। सिर्फ कुरान के एक लफ्ज को समझो कि काजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मालिक का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए कि काजी में और मालिक में 4 फर्क हैं। काजी में और मालिक में जो है वो 4 फर्क हैं। पहला फर्क ये है कि काजी जो होता है वो कानून का पाबंद होता है, वह कानून के खिलाफ जो है वो काजी फैसला नहीं कर सकता है, और मालिक के पास शाही इख्तियार होता है, वो कानून का फैसला करे गैर कानून का फैसला करे वो मालिक है, उसके पास जो है वो शाही इख्तियार है। तो काजी नहीं, अल्लाह मालिक बनकर आएंगे, अल्लाह को इख्तियार होगा, जिसे चाहे माफ करे जिसे चाहे पकड़े, अल्लाह किसी कानून के जो है वो पाबंद नहीं होंगे। पहला फर्क काजी में और मालिक में। और दूसरा फर्क जो है काजी और मालिक में जो है वो ये है कि जो है काजी की अदालत जो है, काजी की अदालत जो है वो किसी ऐसे मुजरिम को माफ नहीं कर सकती है जो जुर्म का इकरार कर रहा हो। मैंने कत्ल किया है, काजी के सामने कहता है, अब काजी इस कातिल को माफ नहीं कर सकता है, और मालिक को इख्तियार है कि माफ कर दे। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मालिक को तो ये इख्तियार है कि गुनाहों के बदले में नेकियां लिख दे। 1 करोड़ एक बंदे ने गुनाह किए हैं, लेकिन मालिक है वो हुक्म दे दे कि 1 करोड़ नेकियां इनके आमाल नामे में लिख दो, मालिक को इख्तियार है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तीसरा फर्क, काजी किसी के रिकॉर्ड को खत्म नहीं कर सकता है। एक शख्स ने 3 कत्ल किए हैं, चौथे कत्ल में उसको पकड़ा है, लेकिन उसने चौथा कत्ल नहीं किया था, लेकिन काजी ये नहीं रिकॉर्ड में ला सकता है कि पहले जो उसने कत्ल किए थे वो खत्म हो गए हैं, उसका रिकॉर्ड जो है महफूज रहेगा। हाँ, मालिक को इख्तियार होता है कि वो मुजरिम के रिकॉर्ड ही को जो है वो खत्म कर दे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ताबल अब्दु, जब कोई बंदा अल्लाह के सामने तौबा करता है, अंसाहुल्लाहुल हफ़ज़ा, अल्लाह फरिश्तों को जो है वो भुला देते हैं, वजवारिहहु, अल्लाह करने वाले के आज़ा को जो है उस गुनाह को भुला देते हैं, व मआलिमहु फिल अर्द, और जिस जमीन पर किए हैं अल्लाह उस जमीन को भी जो है वो गुनाह भुला देते हैं। हत्ता लक़ी अल्लाह, यहाँ तक कि ये अल्लाह से इस हालत में जो है वो मुलाकात करता है। वलैसा मिनल्लाहि शाहिदुन बिज़ंबिन, इसके गुनाह पर कोई गवाही बाकी नहीं रहता है। मालिक है वो सारे रिकॉर्डों को जो है वो खत्म कर सकता है। और चौथा फर्क जो है वो ये है कि मालिक की अदालत में कानूनी जंग होती है, इसलिए वकील पेश होते हैं, इसलिए कि कानूनी जंग करनी है। और मालिक की अदालत में सिफारिश चलती है, मालिक की अदालत में सिफारिश चलती है। मालिक की अदालत में जो है, मालिक की अदालत में कानून की जंग नहीं होती। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया इस आदमी को फांसी लगा दो, उसकी आखिरी अपील जाती है सदर मोहतरम के पास, सदर साहब के पास। अब सदर साहब के पास माफ करवाने के लिए वकील नहीं जाएगा कि जनाब आप इस कातिल को माफ कर दो, मेरे पास ये दलाइल है, ये कानून है। हाँ, अगर सदर का कोई करीबी ऐसा आदमी मिल जाए जो कि सदर उसकी बात को कबूल करेगा, तो हम सिफारिशी बनाकर सदर के पास उसको भेज दे और वो जाकर कहे कि जनाब बेचारे को माफ कर दो। सदर कहता है चलो मैंने इसकी अपील को जो है वो मंजूर कर लिया। तो मालिक की अदालत में सिफारिश होती है, मालिक की अदालत में वकील जो है वो पेश नहीं होता है। अल्लाह यहाँ काजी का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये 4 बातें फिर जो है वो नहीं होती, इसीलिए अल्लाह ने काजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ने मालिक का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है। एक लफ्ज में कितना बड़ा, अल्लाह की एक लफ्ज में कितनी बड़ी हिकमत है। अब हम पढ़ते रहे हैं मालिक यौमुद्दीन, अरे यहाँ काजी होना चाहिए था, मालिक नहीं होना चाहिए था आम जाहिर के एतबार से, लेकिन अल्लाह ने मालिक क्यों कहा? इन 4 वजह से अल्लाह ने लफ्ज मालिक का इस्तेमाल किया और काजी का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। जिन लोगों ने इस कुरान की हकीकत को, इसकी अजमत को जो है वो समझा था, इमाम इस्माईल रहमहुल्लाह,
इमाम अहमद बिन हम्बल के कबीले के एक इमाम गुजरे हैं, इमाम इस्माईल। इमाम इस्माईल जो है कुरान का एक लफ्ज है, कुल मताउ दुनिया कलील, कुल मताउ दुनिया कलील। अब ये मता एक लफ्ज है, इमाम इस्माईल के ये मता का आखिर इसका माना क्या है, मता का मतलब क्या है। एक बद्दू कबीले के अंदर जाकर ठहर गए कि बद्दू जो अरबी बोलेगा वो असली अरबी बोलेगा। 2 महीने ठहरे रहे लेकिन किसी ने मता के लफ्ज को इस्तेमाल ही जो है वो नहीं किया। तो एक दिन जो है वो घर के बाहर बैठे हुए थे और घर वाले की अहलिया जो है, घर वाले की अहलिया ने बर्तन धोए, कपड़े से साफ किए। उस कपड़े पर जो है यानी जो बर्तन में होता है उसकी खुशबू कपड़े में लग जाती है, आयल हो, तेल हो, असलगी हो। उसने वो बर्तन को कपड़े से साफ कर उस कपड़े को रखा। कुत्ता आया, उसमें से घी की खुशबू आ रही थी। कुत्ते ने उस कपड़े को उठाया और लेकर भाग गया। तो अंदर से अहलिया ने कहा अखज़ल मता व फर्रा, अखज़ल मता व फर्रा। कुत्ते ने मता लिया और भाग गया। इमाम इस्माईल रहमुल्लाह कहते वल्लाहि कद वजदतु, वल्लाहि कद वजदतु। पता चल गया कि अल्लाह ने जो लफ्ज़ मता इस्तेमाल किया है इसकी हकीकत क्या है, आज मुझे जो है वो पता चल गया। इमाम इस्माईल रहमुल्लाह ने एक लफ्ज कुरान पाक का पढ़ा, फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा। दमदमा का लफ्ज पूरे कुरान में एक ही दफा जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इमाम इस्माईल हैरान हुए कि जो है दमदमा का क्या हकीकत है, किसे कहा जाता है। इस मालूम करने के लिए एक कबीले के अंदर चले गए। 1 साल तक ठहरे रहे उस कबीले के अंदर कि ये कभी तो इस लफ्ज को अपनी ज़बान में इस्तेमाल करेंगे। 1 साल तक उस लफ्ज को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इमाम इस्माईल इस एक लफ्ज को समझने के लिए 1 साल तक उस कबीले के अंदर जो है वो ठहरे रहे। अल्लाह की शान, घर के बाहर जो है वो बैठे हुए थे। अंदर जो है वो अहलिया जो है घर वाले की अहलिया सालन बना रही थी। अब वो जब शोरबा उबलने लगा, अंदर भाप जो है वो पैदा हुई। अब वो ढक्कन जो है वो उड़ा और जाकर गिरा तो अंदर से उस औरत की आवाज आई, दम दमत दम दमत दम दमत। इमाम इस्माईल रहमुल्लाह खड़े हो गए कि आज दमदमा की जो है वो हकीकत मालूम। बगैर जूते पहने वहां से भागे और पैदल जो है वो बगदाद पहुंचे। ये वो लोग थे जिन्होंने इस कुरान को समझने के लिए, एक एक कुरान के लफ्ज को समझने के लिए इतना कुछ जो है वो किया हुआ था। इमाम उबैद रहमुल्लाह कुरान पाक की तिलावत जो है वो कर रहे हैं। फस्दा बिमा तुअमर, उन्हें पढ़ा। एक देहाती पास से गुजर रहा है, वो घोड़े से उतरा और सजदे में गिर गया। इमाम उबैद ने कहा भी क्या हुआ? कहा मैं इस कलाम को सजदा कर रहा हूँ जो कलाम तुमने पढ़ा है। फस्दा बिमा तुअमर, अब बज़ाहिर माना क्या है कि आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है अब उस काम को पूरा करे और मुशरिकीन से जो है वो एराज करे। इसमें तो कोई सजदे में गिरने की बात नहीं थी। लेकिन अल्लाह ने लफ्ज इन कसरा का इस्तेमाल नहीं किया। इन कसरा भी जो है वो टूटने के माने में आता है, लेकिन अल्लाह ने सदा का लफ्ज इस्तेमाल किया। एक लफ्ज कुरान का सदा का लफ्ज इस्तेमाल किया। और सदा का माना होता है कि शीशा इस तरह टूट जाए और चूरा चूरा हो जाए कि फिर टूटा हुआ शीशा, चूरा हुआ शीशा दोबारा जुड़ नहीं सकता है। उसे ऐसी धातु शीशा कि दोबारा जुड़ नहीं सकता है। अब आयत का क्या मतलब बना? फस्दा बिमा तुअमर, कि आप इन मुशरिकीन पर ऐसी वार लगाएं कि क़यामत तक दोबारा आपस में जमा ना हो सके। ऐसे एक लफ्ज फस्दा कि ऐसे इन पर आप वार लगाएं अल्लाह के रसूल कि क़यामत तक दोबारा इकट्ठे ना हो सके। कुरान का एक एक लफ्ज जो है उसको समझने के लिए, इसलिए अल्लाह ने हमें ऐसी अजमत वाली जो है वो किताब अता की है। मैंने आखिरी बात अर्ज करता हूँ। आखिरी बात मैंने क्या अर्ज की थी कि मालिक की अदालत में सिफारिशी चलते हैं, मालिक की अदालत में ज़ाब्ता और कानून जो है वो नहीं चलते हैं। अभी आपके सामने अर्ज किया। देखो, हम सब ने एक अदालत में जमा होना है और उस अदालत में जो आएंगे वो क्या बनकर आएंगे? अभी आपको बताया, मालिक बनकर आएंगे। दुनिया के अंदर 2 तरह के इदारे जो है वो चल रहे हैं। एक इदारे का नाम स्कूल है, उसमें वकील पैदा होते हैं, उसमें डॉक्टर पैदा होते हैं, उसमें इंजीनियर जो है वो पैदा होते हैं। अब जो है वकील की जरूरत सारी उम्मत को है या बाज़ लोगों को है? बताओ। बाज़ लोगों को जरूरत है वकील की, और इसी तरह जो है वो डॉक्टर की जरूरत सारी उम्मत को या बीमार को है?
सिर्फ बीमार को है। इंजीनियर की जरूरत किसको है? जो नक्शा बनवाना चाहता है। जो नक्शा नहीं बनवाना चाहता है उसे इंजीनियर की जरूरत नहीं है। तो ये सारी उम्मत जो है, सारी उम्मत न डॉक्टरों की मोहताज है, न इंजीनियर की मोहताज है, न वकील की जो है मोहताज है। हाँ, एक दिन जो है इस उम्मत ने अल्लाह के सामने जमा होना है। अभी अर्ज किया कि अल्लाह के सामने सिफारिश चल सकती है, अल्लाह के सामने कानून और ज़ाब्ता जो है वो नहीं चलेगा। तो हम सब ने जमा होना है ना अल्लाह के सामने, और सिफारिश की जरूरत सारी उम्मत की है या बाज की है? सब ने अल्लाह के सामने जमा होना है। वहां किसी की वकालत नहीं चलेगी, वहां क्या चलेगी? सिर्फ जो है वो सिफारिश चलेगी। अब सवाल ये है, अब ये सवाल ये है कि ये सिफारिशी कहाँ पैदा होते हैं? ये तो हम समझ गए, डॉक्टर स्कूल में पैदा होता है, इंजीनियर स्कूल में बन रहा है, वकील स्कूल में बन रहा है। हम तो इनके सारे मोहताज नहीं हैं, हम तो सारे मोहताज हैं सिफारिशी के। सिफारिशी कहाँ पैदा हो रहे हैं? तो दूसरे इदारे का नाम जो है वो मदरसा है। दूसरे इदारे का नाम क्या है? मदरसा है। हम सब सिफारिशी के मोहताज, सिफारिशी के मोहताज है, और सिफारिशी सिर्फ मदरसों में पैदा हो रहे हैं और कहीं पैदा नहीं हो रहे। एक आदमी के 4 बेटे थे, वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है और एक हाफिज कुरान है। माँ बाप पकड़े गए अपने गुनाहों की वजह से। अब वकील तो पेश हो नहीं सकता है, कानून ज़ाब्ता तो अल्लाह के सामने को बयान कर नहीं सकता है। अब डॉक्टर साहब कहेंगे जी मेरे बाप हैं, आप अल्लाह माफ कर दें, अल्लाह की जगह दूर हो जाओ। इंजीनियर आकर कहेगा ये अल्लाह में ये मेरे माँ बाप हैं, अल्लाह कहेंगे एक तरफ हो जाओ, मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारी सिफारिश कबूल करूंगा। वकील साहब आ जाए कि अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल कर ले, अल्लाह कहेंगे दूर हो जा। अब माँ बाप ने देखा इतने बड़े बड़े हमारे बेटे, अल्लाह ने इन्हें भगा दिया, तो एक बच्चा हमने मौलवी हारून साहब के भी हवाले किया था, उसको भी आजमा लेते हैं। कि मदरसे में उसने हिफ्ज़ कुरान किया था। उसने जब देखा कि माँ बाप के हाथ जंजीरों में बंधे हुए हैं, फैसला हो गया फरिश्तों को, पकड़ो, खुज़ूहु फग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु, ले जाओ इसे जहन्नम के अंदर और जहन्नम के अंदर इसे फेंक दो। अब ये बेचारा परेशान अल्लाह के सामने आ गया, अल्लाह मियां ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है जिसे फरिश्तों ने जंजीरों में बांधा हुआ है, मैं सिफारिशी बनकर आया हूँ। अल्लाह ताला कहेंगे हाँ हाँ हाँ, मैंने वादा किया था कि कुरान वाले की सिफारिश को कबूल करूंगा। अगर तू सिफारिशी बनकर आया है तो फरिश्तों का हुक्म होगा इसके माँ बाप की जंजीरों को खोल दो और इसके माँ बाप को फौरन जो है वो जन्नत का लिबास पहना दो, इसलिए कि सारे नंगे खड़े हुए होंगे। तो सिफारिशी कहाँ पैदा हो रहे हैं? और सारी उम्मत सिफारिशी की मोहताज है। और सिफारिशी कहाँ पैदा हो रहे हैं? मदरसे के अंदर जो है वो पैदा हो रहे हैं। और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये सारी उम्मत जो है मोहताज है, इसलिए अल्लाह इन सिफारिशों को क़यामत तक बाकी रखेंगे। ये हो नहीं सकता कि उम्मत हो और सिफारिशी खत्म हो जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए दुनिया वाले कुछ कर ले, अल्लाह की कसम अल्लाह इन सिफारिशियों को अल्लाह क़यामत तक बाकी रखेंगे। अल्लाह क़यामत तक जो है वो पैदा करते रहेंगे और ये मदरसे भी जो है क़यामत तक जो है वो बाकी रहेंगे। बड़ी अजीब बात है, आप अपनी किसी काम के लिए किसी को सिफारिशी बनाकर जो है कराची लेकर जा रहे हैं, तो कराची का किराया वो देगा या आप देंगे? जो लेकर जा रहा है वो देगा। अगर खाने का टाइम हो गया तो वो खिलाएगा या आप खिलाएंगे? आप खिलाएंगे जो सिफारिशी बनाकर लेकर जा रहा है। ये मदरसे में पढ़ने वाले मेरे हारून साहब थे, ये सारे आपके सिफारिशी हैं, इनका खर्चा भी आपके जिम्मे है, इनको खिलाना भी आपके जिम्मे है, इनके ख्याल रखना भी जो है वो आपके जिम्मे है। ये आपके लिए सिफारिशी तैयार हो रहे हैं। सिफारिशी जो है जो लेकर जा रहा है उसके जिम्मे सब कुछ होता है। उम्मत के जिम्मे है इनके सारे मसारिफ, इनकी सारी जरूरियात, इनके लिबास, इनका खाना, इनका पीना, इनकी रिहाइश, सारी उम्मत के जो है वो जिम्मे है। इसलिए कि यहाँ से ये सिफारिशी जो है वो तैयार होंगे और ये सिफारिशी कल क़यामत के दिन अल मालिक के सामने जो है वो काम आएंगे। अगर सारी उम्मत ताउन करना छोड़ दे, अल्लाह की कसम अल्लाह इन सिफारिशियों को फिर भी पैदा करते रहेंगे और फिर भी सिफारिशी जो है वो पैदा होते रहेंगे। ये हो नहीं सकता है कि अल्लाह इतने प्यार करने वाला हमारे साथ अल्लाह हो और खास तौर पर इस उम्मत के साथ तो अल्लाह की खुसूसी मेहरबानियां हैं, खुसूसी शफकतें हैं। देखो सारी जो है हमसे पहले जो उम्मतें
गुजरी हैं उन्होंने कितने अरसा अल्लाह की इबादत में गुजारा। इब्न कसीर ने लिखा है कि कौम आद का बच्चा 300 साल में पूरा जवान होता था, पूरा जवान 300 साल में। बनी इसराइल की बड़ी बड़ी उम्रें हुई हैं, उन्होंने इतने जमाने इबादत की है। और हमारी इबादत का जमाना कितना है? 60-65 के दरमियान। वो कई सौ साल इबादत कर रहे हैं और हमने कितनी इबादत करनी है? 60-65 के दरमियान। अल्लाह ने हमारी मजदूरी का जमाना कितना मुख्तसर कर दिया, छोटा सा जो है वो कर दिया। और फिर जितनी उम्मतें आई हैं अल्लाह ने हमें बताया, कौम आद ने ये किया, कौम समूद ने ये किया, कौम साले ने ये किया, कौम नूह ने ये किया, कौम शुएब ने ये किया, हमने इस तरह मारा, इस तरह पकड़ा, इस तरह जलील किया, इस तरह बंदर बनाया, इस तरह खंजीर बनाया। लेकिन इस उम्मत के बारे में अल्लाह ने किसको बताया है? इस उम्मत ने ये गुनाह किए हैं, इस उम्मत ने ये बुराइयां, किसी उम्मत को बताया? उम्मत नहीं तो किसको अल्लाह बताएंगे? हमारे बात तो कोई उम्मत नहीं है। हमारे ऐबों को अल्लाह ने कैसा छुपाया है कि हमारे बात कोई उम्मत ही नहीं रखी। हमें सबके ऐब बताए हैं, लेकिन हमारे ऐब अल्लाह ने किसी को जो है वो नहीं बताए हैं। अल्लाह ने कितनी मेहरबानी का मामला किया है। अल्लाह ने घर तक पहुंचने के लिए हमारा रास्ता कितना मुख्तसर कर दिया है। घर तक, हमारा घर क्या है? हमारा घर क्या है? जन्नत। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए थे ना, हम उनकी औलाद हैं। हमारा घर क्या है? जन्नत। अब जो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में मरा है उसे जन्नत में पहुंचने तक कितने साल लगेंगे? और अब हम जो अब मर रहे हैं हमें जन्नत तक पहुंचने के लिए कितने साल लगेंगे? इसलिए कि हमारे बाद कोई उम्मत नहीं है, तो उन्हें घर तक पहुंचने के लिए कितना लंबा सफर करना पड़ रहा है। और हमें घर तक पहुंचने के लिए हमारे करीब अल्लाह ने जन्नत को खड़ा कर दिया है कि तुम हो या क़यामत है, क़यामत में जन्नत का फैसला जो है वो हो जाएगा। तो अल्लाह तो इस उम्मत पर जो है वो मेहरबान है, शफीक है। किसी उम्मत को लैलतुल क़द्र नहीं मिली है। ये यानी कैसा कि एक रात की इबादत 80 साल शुमार हो जाए, किसी उम्मत को जो है नहीं अल्लाह ताला ने दिया है। शब बारात अल्लाह ने, शाबान की 15वीं रात अल्लाह ने किसी उम्मत को नहीं दी है। बनी कलब के भेड़ों के बारों के बराबर जो है मैं इस उम्मत की जो है मगफरत करता हूँ, अल्लाह ने किसी को नहीं दी। रमजान अल्लाह ने पहली उम्मतों को दिया, 24 घंटे का रोजा दिया। जब मेरा और आपका नंबर आया अल्लाह ने कहा नहीं ये तो मेरी महबूब उम्मत है, चलो तुम्हारे लिए जो है वो 12 घंटे का रोजा कर देता हूँ। उनका रात भी रोजा होता था, उनका दिन भी रोजा होता था। अल्लाह ने नमाज हमें भी दी, उन्हें भी दी। हमारी नमाज में अल्लाह ने जो है वो रुकू भी बनाया, सजदा भी बनाया, क़िरात भी बनाई। उनकी नमाज़ों में कुछ भी नहीं था, सिर्फ जिक्र था और सलाम था और कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने हमें नमाजें भी कैसे दी? ये सारा अल्लाह की शफ़क़त का मामला। इसलिए ये नहीं हो सकता कि उम्मत हो और सिफारिशी खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता है। इसलिए ये अदारे यह उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस उम्मत को बहुत बड़ी हलाकत मुसीबत से ये सिफारिशी बचाने वाले हैं। इसलिए जो इनके साथ ताउन करेगा, इनकी हमदर्दियां करेगा, खैर खाइयां करेगा, कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह जो है हेरात के गवर्नर ने जो एक मदरसा बनाया, उस मदरसे में जो है वो तलबा पढ़ रहे थे। तो एक जो है बड़े मियाँ जो है वो उनकी खिदमत करते थे, खाना उठा कर लाते। तो बच्चे ने उसका नाम बेल रख दिया, ये सामान उठा कर लाता है ना, जो है वो बेल रख दिया। जो है वो नाराज हो गया कि ये मुझे बेल कहते हैं, मैं इनकी खिदमत करता हूँ, नाराज हो गया। तो उसने जो है वो ख्वाब में देखा कि क़यामत जो है वो कायम हो गई है और सारे लोग जो है वो अल्लाह के सामने जमा है। अल्लाह उन तलबा से कह रहा है कि तुम जाओ जन्नत में, तुम जाओ जन्नत में, तुम जाओ जन्नत में। तो बच्चे कहने लगे हमारा बेल कहाँ है, हमारा बेल कहाँ है, उसे भी हम अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। तो वो सुबह दौड़ता हुआ बूढ़ा आया कि तुम मुझे बेल कहो, गधा कहो, लेकिन मैं तुम्हारी खिदमत जो है वो करता रहूंगा। इसलिए ये मदारिस का इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह इस मदरसे को और तरक्की दे, अल्लाह इस मदरसे को और आगे बढ़ाए। जितना हमारा ताउन होगा इंशाअल्लाह ये मौत के बाद हमारे काम आएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक